Bismillahirrahmanirrahim. So far, we have discussed the different processing operation. Today, we will discuss uh, materials handling. This is one of the important operation whenever you are applying processing operations to the agricultural products. Okay. See, suppose if you have the product at the field or farm, after that you will have to transport it into the industry for the processing purposes, suppose for the cleaning purposes. Now after cleaning, suppose you want to dry that product. After drying, suppose you want to reduce the size of the product. After reduction, you want to pack that products in uh, different units. After that, you will again transport it into the market. So now here you can see that different processing operations are involved. See, for example, the first one is cleaning, second one is the drying, suppose third one is the size reduction, fourth one is the packing. So these are called the यूनिट ऑपरेशंस. आप प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी चेंज कर रहे हैं. ओके, जो उसकी हमने जो एडवांटेजेस डिस्कस किए कि हम क्यों कर रहे हैं. ओके, नाउ बीइंग एन इंजीनियर we are interested to design an efficient and effective processing system. Now, the efficiency of these systems are depend on the availability of the product at right time. See, suppose अगर आप क्लीनिंग कर लें और प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली और टाइमली ड्राइंग के लिए आप ट्रांसपोर्ट ना करें, उसको आप कन्वे ना करें, तो क्या होगा? ड्राइंग सिस्टम की इफिशिएंसी इफेक्ट होगी, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी. नाउ सिमिलरली अगर प्रॉपरली और राइट टाइम पे आप प्रोडक्ट साइज रिडक्शन यूनिट को कन्वे ना करें, तो साइज रिडक्शन यूनिट की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी. ठीक है, उसका टाइम वेस्ट होगा ना. अगर सपोज सिस्टम चल रहा है तो वो एम्प्टी ऑपरेट होगा, बिकॉज प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, सिमिलरली पैकिंग के लिए अगर लेबर्स बैठे हुए हैं और उनको टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो क्या पैक करेंगे फिर? सो अगेन द परफॉर्मेंस विल बी affected. So remember, the performance of a processing unit is depend on the moment of material, on the moment of the product from one unit operation into another unit operation. ठीक है, एक सिस्टम की, एक प्रोसेसिंग यूनिट की या एक प्रोसेसिंग प्लांट की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ मटेरियल. ठीक है, कि मटेरियल को या प्रोडक्ट को आपने टाइम पे प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी आपने उसको कन्वे करना है. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पसेस we are studying the material handling. That being an engineer, we will have to design, we will have to select such a conveyance system which cannot affect the performance of the individual units. ठीक है, आपने इसको हर यूनिट को टाइम पे और राइट क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करना है. ठीक है, या इस तरह भी पॉसिबल है कि सपोज यहाँ पे आप क्लीनिंग कर लें और फर्स्ट फ्लोर पे आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो मटेरियल को आपने इस पॉइंट से 2 पॉइंट तक सपोज बेल्ट के जरिए आप इसको एलिवेट कर लें. ठीक है, बेल्ट के जरिए, तो इसमें हॉरिजॉन्टल मोमेंट भी आ गया
और वर्टिकल मोमेंट भी आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर आप उसकी साइज रिडक्शन कर रहे हैं सेम फ्लोर पे, सेम लेवल पे, तो मटेरियल को आपने ड्राइंग पॉइंट से साइज रिडक्शन प्लांट तक कन्वे करना होगा. So again you can design the belt system, the chain system, the screw system. ओके अब सपोज अगर नीचे फिर आप इसको पैक कर रहे हैं तो ऊपर से अगेन आपने इसको किस तरह कन्वे करना है, इसको मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं. द मोमेंट ऑफ द प्रोडक्ट both horizontally and vertically, that is called the material handling. ठीक है. So efficiency of each and every unit will be depend on the moment of the material. Okay, that is also called the industrial material handling. And again some specialized efficient and effective system must be installed for that purposes. Okay, so see the processing plant, as we have discussed, that the performance of the processing plant is majorly affected by the moment of the agricultural product. ठीक है. तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं. ओके, स्क्रीन थोड़ा लॉस्ट हुआ था, लेट मी शेयर इट अगेन. So the performance of the processing plant is measurably affected by the efficiency of the movement of the material from one unit operation to another operation. As we have discussed, that suppose that you have the cleaning unit, you have the drying unit, you have the size reduction unit, you have the packing unit. So the efficiency of each unit will be depend on the efficiency of the movement of the product. And that movement of the product, both in horizontal direction and vertical direction, that is called the material handling. ठीक है, इसको material handling कहते हैं. So material handling include a number of operations that can be executed either by hand or mechanical. Again, manually भी आप material को transport कर सकते हैं ना, buckets में या small bags में, कि एक यूनिट से आप दूसरी यूनिट तक उसको कन्वे कर लें, उसको मूव कर लें. या यू कैन डिजाइन a mechanical system to improve the efficiency. ठीक है, you have to reduce the manpower. So some mechanical devices will be required to convey the material and reduce the human efforts. ठीक है. तो जो लार्ज इंस्टॉलेशन है मटेरियल हैंडलिंग के लिए, that should be designed by the processing engineer. Again, in the designing, we are looking for the speed of the system, width of the conveying system, horsepower requirement, the tension and forces generated due to the conveyance of the product. ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ द सिस्टम. सपोज अगर आप एक बेल्ट डिजाइन कर रहे हैं ना मटेरियल हैंडलिंग के लिए, सिंपली इफ यू पीपल हैव सीन इट इन द क्रशिंग प्लांट, अक्सर जो क्रशिंग प्लांट होते हैं ना, उसमें बेल्ट्स लगे होते हैं. एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को कन्वे करने के लिए क्या होते हैं, बेल्ट्स होते हैं. नाउ सिमिलर सिस्टम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. सो बीइंग एन इंजीनियर, हमारा जॉब क्या होगा कि इस बेल्ट का स्पीड क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, कितना हॉर्स पावर इसकी ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, इसमें कितने टेंशंस क्रिएट होंगे, बेल्ट का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, कितने साइज की पुलीज रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, बेल्ट का थिकनेस क्या होगा. ठीक है, और सपोज अगर आप वर्टिकली या इंक्लाइंडली मटेरियल को कन्वे कर रहे हैं, if there is some vertical difference between the two units, तो
इस बेल्ट का जो इंक्लाइनेशन है ये स्टैंडर्डली कितना होना चाहिए. So being an engineer, we are dealing with these terminologies, and that is called the design. We have to select the effective and efficient material handling devices. Okay. So जो most common types हैं, that is belt conveyor होते हैं कि बेल्ट के जरिए आप प्रोडक्ट को कन्वे कर लें. बकेट एलिवेशन होता है. ठीक है, सपोज अगर एग्जैक्टली आप एक यूनिट जो है वो दूसरी यूनिट की ऊपर है, वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसको आप बेल्ट की जरिए फिर एलिवेट नहीं कर सकते. इसके लिए बकेट्स यूज होते हैं ना, यहाँ पे इस तरह बकेट्स होते हैं. तो बकेट्स जो हैं अगेन दैट विल बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ चेन. तो यहाँ पे ये फिल होके जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये खाली हो जाएंगे फिर. सो दैट इज आल्सो a kind of movement of product in vertical direction. ठीक है, तो बकेट एलिवेटर्स हैं, स्क्रू कन्वेयर्स हैं, चेन कन्वेयर. वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन. आल्सो ग्रेविटी कन्वेयर भी है. ठीक है, सपोज अगर बाय यूजिंग दी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अब देखिए अगर ऊपर से नीचे की तरफ आपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है तो फिर उसके लिए कोई मैकेनिकल पावर ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी. आप इस तरह भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए. तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ द ग्रेविटी कन्वेयर. ओके, नाउ which type of the material handling mechanism or conveyor will be selected. So the selection of the proper conveying system is important for easiness in operation. Again, getting the required capacity of the particular product at a given unit. कि किस यूनिट में किस तरह की प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उस हिसाब से फिर आपने रिक्वायर्ड सिस्टम डिजाइन करना होगा. तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि सी व्हिच सिस्टम विल बी सिलेक्टेड, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि कौन सा मैकेनिज्म आप सेलेक्ट करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के लिए. तो इसकी कुछ फैक्टर्स हैं. फर्स्ट फैक्टर जो है आपने ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर कन्वेइंग. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, fibrous product है, what type of product you want to convey. Okay, second जो factor है that is the working and climatic condition. ठीक है, working environment किस तरह है, उसकी environmental condition क्या है, and what will be the effect of the environmental and climatic condition on the product. तो आप closed system डिजाइन कर रहे हैं, open system डिजाइन कर रहे हैं. ठीक है. Similarly, capacity है most important. The capacity of the conveying system. कि एक सिस्टम जो है वो उससे आपने कितना प्रोडक्ट कन्वे करना है. So remember, the capacity of the conveying system will be depend on the capacity of the operating unit. ठीक है, कि सपोज अगर आप क्लीनिंग से ड्राइंग के लिए प्रोडक्ट को कन्वे कर रहे हैं तो ड्राइंग यूनिट की कैपेसिटी कितनी है, पर हावर में वो कितना प्रोडक्ट ड्राई कर रहा है, तो उतनी कैपेसिटी पे आपने प्रोडक्ट को कन्वे करना होगा. ज्यादा भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे. ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द कन्वेयंस सिस्टम, एंड दैट विल बी डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग यूनिट. ओके, एंड आल्सो यू विल हैव टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटी of use of gravity. ये कौन सा सिस्टम आप सेलेक्ट कर रहे हैं. आप देखिए कि कौन से सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा आप ग्रेविटी को यूज कर सकते हैं ताकि इनपुट पावर जो है वो डिक्रीज हो जाए. समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? Yes, sir. Okay, so simply we can summarize it that material handling is the movement of the agricultural product from one point into another point, from one processing unit to another processing unit. Okay, and for that purposes we can use different mechanisms, and the selection of these mechanism या these conveyance system are depend on the characteristics of the product, climatic condition,
capacity of the operating unit, okay, and the possibility to use the gravity, okay. इसकी बेस पे फिर हम डिफरेंट मैकेनिज्म सेलेक्ट करते हैं, ओके। सी क्रेन्स भी है ना, नॉर्मली जो प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ये भी मटेरियल हैंडलिंग में आ जाता है, जिसमें सपोज आप मटेरियल को पैक करके फिर ट्रक और गाड़ियों में उसको आपने रखना होता है, अगेन क्रेन्स विल बी यूज्ड, सो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। सिंपली ये हैंड ट्रॉली जो होती है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कन्वेयर, ठीक है। लासो वाला गाड़ी चीवी, ओके। लेट्स सी, एक वीडियो है, इसको जस्ट देखें कि बेल्ट कन्वेयर किस तरह उसका वो काम किस तरह कर रहे हैं, या किस तरह वो उसका ऑपरेशन होता है। सी, अब इसमें आप देखिए पेक्ड प्रोडक्ट जो है वो मूव हो रहे हैं, ठीक है, उसकी मूवमेंट हो रही है, पेक्ड प्रोडक्ट है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ कन्वेयर, इसको आप बेल्ट कन्वेयर कह सकते हैं। देखिए बेल्ट है ना, और हॉरिजॉन्टली ये प्रोडक्ट को मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वीडियो क्लियरली नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, see, being an engineer, again we are interested to design an efficient belt conveyor system. So again, in the designing, the speed of the belt is required, okay, the width of the belt, thickness, the tensions generated due to the conveyance of the product, the power requirement, कितना पावर इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इसमें टेंशंस कितने जनरेट होंगे, वेट थिकनेस उसका क्या होगा, पुली के डायमीटर्स क्या होंगे, ठीक है। इन ऑल दीज थिंग्स वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है। जस्ट लुक इनटू द कन्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये तो अदर मटेरियल है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड to design a conveyance system for the agricultural product, ठीक है। Just we have to convey the product from one point into another point, from one operating unit into another operating unit. Here you can see also the change in direction, that one belt is running perpendicularly to another belt, तो प्रोडक्ट जो है किस तरह एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट की तरफ एंटर हो रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। So you can get the idea for the different designing concepts for the conveyance of the agricultural product in the processing industries, okay. अच्छा, now as you have seen in the video, belt conveyor जो है that is an endless belt, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बेल्ट होता है ना, सो इसका एंड नहीं होता, अब देखिए ना, ये इसका एंड नहीं होता। सो बेल्ट कन्वेयर इज एन एंडलेस बेल्ट ऑपरेटिंग बिटवीन टू और मोर पुलीज, देयर मस्ट बी टू पुलीज एंड यू कैन आल्सो इंस्टॉल द इंटरमीडिएट पुलीज। जी, अगर आप लोगों ने मशीन डिजाइन में पढ़ा हुआ है, अगर बेल्ट की लेंथ ज्यादा हो जाए, दो बेल्ट्स तो एंड, दो पुलिस तो एंड पे लगे हुए हैं, तो जब आप यहाँ से मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्लेग क्रिएट होगा, which can damage the system, या for that more power will be required to move the belt, you have to produce the required velocity. So for that purposes, then here we are installing intermediate pulleys, ठीक है। So a belt conveyor, that is an endless belt operating between two or more pulleys with its load supported on idlers. See, pulleys जो होते हैं इसको ये पावर पे ऑपरेट होते हैं ना, पावर, एक हमारे पास ड्राइवर पुली होता है और एक ड्रेवन पुली होता है। ड्राइवर पुली जो है दैट इज कनेक्टेड विद द मैकेनिकल पावर, और इसकी बेस पे ये बेल्ट को मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको इस तरह कंप्रेस्ड करते हैं, इसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। बीच में भी आप पुली इंस्टॉल करते हैं, सपोज
मोर पावर इज रिक्वायर्ड, तो आप 2-3 पुली इंस्टॉल कर ले, 2-3 पुलिस को जो है आप पावर इन कर लें, ठीक है। इफ द कैपेसिटी या द कन्वेंस कैपेसिटी इज मोर, ठीक है। अगर कन्वेंस कैपेसिटी कम है और वन पुली जो है सपोज दैट इज इनफ फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट, तो फिर इस बेल्ट की बीच में हम जस्ट आइडलर्स लगाते हैं, इस तरह सर्कुलर आइडलर्स होते हैं, या आप देखिए बियरिंग्स लगाते हैं फॉर द सपोर्टिंग पर्पसेस, ठीक है। दो ये जो इस तरह बेल्ट होता है ना, इन पे तो पुलीज होंगे, बीच में यहाँ पे या बियरिंग्स लगाते हैं या आइडलर्स लगाते हैं, ठीक है, फॉर द स्मूथली मूवमेंट या फॉर द सपोर्ट ऑफ द बेल्ट, ओके। द बेल्ट में भी फ्लैट, सपोज अगर आपने पेक्ड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है, जिस तरह आपने वीडियो में देखे ना, तो ये फ्लैट बेल्ट है। अगर आपने ओपन प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है, मीन सपोज ग्रेन्स, व्हीट और ग्रेन्स आपने ट्रांसपोर्ट करना है, सो वी शेप के बेल्ट होते हैं, ठीक है। सो बेल्ट कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ बेल्ट, एक मेन बेल्ट होगा जिसके ऊपर जो है आप प्रोडक्ट कन्वे करते हैं। वन इज द ड्राइव मैकेनिज्म, मीन द वन विच इज प्रोवाइडिंग द हॉर्स पावर टू द पुली, ठीक है। 2 पुलीज होते हैं, आइडलर्स होते हैं, ठीक है, या बियरिंग्स होते हैं एज अ सपोर्ट, ठीक है। and loading and discharge devices, suppose you have to convey the product from this point to this point, so how you will load the belt and how you will unload the belt. So loading and unloading devices, idlers, pulleys, driving mechanisms and belt, ये उसकी कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। बेल्ट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एज कंपेयर टू दी अदर सिस्टम, इसकी मैकेनिकल इफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी चेन कन्वेयर, उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, फ्रैक्शनल लॉसेस, तो इसकी मैकेनिकल इफिशिएंसी ज्यादा होती है, नॉइस कम होता है, क्योंकि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल्सो इट कैन नॉट डैमेज द प्रोडक्ट बिकॉज इसका मूवमेंट स्मूथ होता है, ठीक है, सरफेस इसका स्मूथ होता है, इतना ज्यादा रफ नहीं होता। एंड इफ देयर इज नो relative motion between the product and belt, then the product cannot be damaged during transportation. कैरिंग कैपेसिटी भी हाई है, मीन ज्यादा प्रोडक्ट आप इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मटेरियल कैन बी कन्वेड लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, मीन हॉरिजॉन्टली लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आप बेल्ट के जरिए प्रोडक्ट कन्वे कर सकते हैं, बट वर्टिकली जो है या इंक्लाइन कन्वेंस जो है दैट इज लिमिट, मीन सी 90 डिग्री पे आप बेल्ट के जरिए प्रोडक्ट एलिवेट नहीं कर सकते बिकॉज वो ऊपर नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो इंक्लाइन कन्वेंस के लिए या एलिवेशन कन्वेंस के लिए ये जो है ये लिमिटेड है, बट फॉर हॉरिजॉन्टल कन्वेंस वी कैन कन्वे द प्रोडक्ट थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ बेल्ट कन्वेयर. And if it is properly designed and maintained during the operation, इसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा होती है, इनिशियल कास्ट कम है बट इफिशिएंसी ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग कास्ट उसका कम होता है। लेकिन अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड दैट कि कौन सा सिस्टम आपने सेलेक्ट करना है, अगेन इट विल बी डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, द एनवायरमेंटल कंडीशन, द कैपेसिटी एंड द पॉसिबिलिटी टू यूज द ग्रेविटी, ठीक है, लेकिन ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Also, installation is advisable only when amortization of the high initial cost can be assured. Remember, जिस तरह हमने मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया हुआ है ना, कि जब आप ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो इसका जो इनिशियल कास्ट होगा, इसका जो ऑपरेटिंग कास्ट होगा, that will be accounted to the unit product. तो this cost must be accounted into the unit product. So अगर इस तरह नहीं है कि आप प्रोडक्ट को कन्वे कर ले और कन्वेंस पे इतना खर्चा आ जाए कि आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो, तो ये तभी एडवाइजेबल होगा या रिकमेंडेड होगा व्हेन द ऑपरेशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज एडजस्टेड टू द यूनिट प्रोडक्ट, ठीक है। ये पॉइंट जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेल्ट कन्वेयर, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे कर रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ओपन सपोज व्हीट है तो इसको कन्वे कर रहे हैं। तो अब देखें इसमें वर्टिकल मोमेंट भी है और इसमें हॉरिजॉन्टल मोमेंट भी है, दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइंड बेल्ट कन्वेयर। अब ये जो है ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल बेल्ट कन्वेयर है। हियर यू कैन सी एक बेल्ट लगा हुआ है ना, जो एक्चुअली प्रोडक्ट को कन्वे कर रहे हैं। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और यहाँ पे एक पुली है। सी, इस पुली के साथ यहाँ पे पावर अटैच्ड है, मीन मोटर के साथ या सम मैकेनिकल पावर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑपरेट द बेल्ट। तो इसको दैट इज कॉल्ड द ड्राइवर पुली एंड दिस इज कॉल्ड द ड्रेवन पुली। और अगर बीच में आप देखें ना ये जो सपोर्ट्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द आइडलर, या फिर बियरिंग्स भी लगाते हैं अगर उसकी बल्क प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे, कन्वे कर रहे। समझ आ रहे हैं? दीज आर दी वी कैन से दैट द कंस्ट्रक्शन। एक बेल्ट होता है, दो पुलीज होते हैं, एक ड्राइविंग मैकेनिज्म होगा, आइडलर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आपने प्रोडक्ट कन्वे करना है तो हाउ यू विल लोड द बेल्ट एंड हाउ हियर यू विल अनलोड द बेल्ट, ठीक है। और मोस्टली जो ड्राइवर पुली होती है ये डिस्चार्ज ईएनपी होते हैं कि सपोज इफ इट इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन, सो ये बेल्ट को इस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, मीन उसको खींचेगा अपनी तरफ, इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है। सो नॉर्मली द ड्राइवर पुली आर इंस्टॉल्ड एट द डिस्चार्ज ईएन, ओके। एंड सी अगेन ये जो बेल्ट होगा दैट विल बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कन्फाइन विद द पुली। इसके साथ सपोज फ्रैक्शन ना हो, स्लिपेज ना हो, तो बेल्ट जो है वो प्रॉपरली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिमिलरली द width of the belt will be enough to carry the quantity and the required material। कि किस मटेरियल के लिए आप बेल्ट डिजाइन कर रहे हैं, so the width of the belt will be enough to carry the required quantity of the product, okay। Similarly, see if you are conveying the product with the belt, यहाँ पे आप पुली लगाई हुई है तो बेल्ट के ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट्स होंगे, लोडेड बेल्ट है ना, forces exerts होंगे। So the belt must have enough strength to withstand with the operating load and tension। इसके ऊपर ये प्रोडक्ट आप कन्वे कर रहे हैं ना, तो एक प्रोडक्ट का लोड होगा और उससे ऑपरेटिंग टेंशंस होंगे। सो बेल्ट की जो स्ट्रेंथ है, दैट द बेल्ट वी कैन से दैट द बेल्ट must have enough strength to withstand with the expected load and operating tensions, okay। Similarly the belt must be waterproof। suppose अगर आप wet product convey कर रहे हैं तो इस तरह ना हो कि बेल्ट जो है वो उससे खराब हो जाए। so belt must be selected of a waterproof material। Similarly, as we have discussed, the drive pulley must be installed at the discharge end, okay। और पुली की जो साइज है वो भी अकॉर्डिंग टू दी वेट ऑफ द बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है विच विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द बेल्ट कन्वेयर, ओके। सिमिलरली the belt can be loaded either manually or mechanically। कि बेल्ट को आप किस तरह लोड कर रहे हैं, आप मैकेनिकल आप इसको लोड कर रहे हैं या मैनुअली आप इसको लोड कर रहे हैं। सिमिलरली इसकी जो डिस्चार्जिंग है, अनलोडिंग जो है, ये मैनुअली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है, ठीक है। हियर यू कैन सी द डिफरेंट एग्जांपल्स या डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द बेल्ट कन्वेयर। देखें यहाँ से ये एक बेल्ट कन्वेयर है ना, ये दो पुलीज लगे हुए, एक पुली यहाँ पे, एक पुली यहाँ पे है, एक ड्राइवर होगा, एक ड्रेवन होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये वी शेप की पुली है। सपोज इफ यू हैव टू कन्वे दी ग्रेन्स, तो उसके लिए आप ओपन वी शेप की बेल्ट जो है आपने इंस्टॉल करना होगा, बिकॉज वो प्लेट बेल्ट से आप नहीं कर सकते थे। एंड इफ यू हैव टू कन्वे दी
पेक्ड प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप फ्लैट बेल्ट डिजाइन कर लें, ठीक है। ये जो है दैट इज कॉल्ड द ट्रैपर। सपोज इफ यू हैव टू कन्वे द ग्रेन्स, तो जो डिस्चार्जिंग है, सपोज यहाँ पे आपने डिस्चार्ज करना है तो यहाँ पे ये ट्रैपर लगाते हैं कि प्रोडक्ट जो है ये फिर आगे ना जाए लेकिन इस पॉइंट पे डिस्चार्ज हो जाए, अनलोड हो जाए, ठीक है। अब देखें ना, ये बेल्ट इस तरह मूव हो रहे हैं, अब इस पॉइंट पे आपने अनलोड करना है तो यहाँ पे ये इस शेप का एक ट्रैपर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ट्रैपर, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट है ये डिस्चार्ज होगा और फिर आगे एम्प्टी बेल्ट जाएगा, ठीक है। दीज आर द आइडलर्स जिसके ऊपर जो है बेल्ट सपोर्ट होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, ये नजर आ रही है, बेल्ट को जस्ट सपोर्ट किया गया है। अगेन ये फ्री होते हैं ना, जिस तरह बेल्ट मूव होता है तो ये आइडलर जो होता है ये रोटेट होते हैं, सो दैट आर सपोर्टिंग द मोमेंट ऑफ द बेल्ट। तो अगेन इट विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बेल्ट। अगर बेल्ट जो है फ्लैट है तो आइडलर भी फ्लैट होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्लैट आइडलर। और अगर बेल्ट जो है वी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो फिर इस हिसाब से इस तरह के आइडलर्स लगे होते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, trippers हैं, as we have discussed, that is used to discharge the material from the belt at any point, ठीक है। इसको आप इस तरह मूव कर सकते हैं। अच्छा, now being an engineer, mostly we are interested in the design of the belt conveyor. So again, on the basis of overall requirement information, we are interested to determine the belt speed, belt weight, required horsepower, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कितना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कितने वेट का बेल्ट रिक्वायर्ड होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा, कितने टेंशन जनरेट होंगे, और बेल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। नाउ रिमेंबर द टेंशंस which are generating due to the load of the product, due to the operating condition, that must be less than the allowable tensions, या that must be less than the strength of the belt, ठीक है। अगर जनरेटिंग टेंशन जो है बेल्ट की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो तो क्या होगा, ब्रेक होगा ना, फेल होगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू फाइंड दैट कि कितना मटेरियल आपने ट्रांसपोर्ट करना है, कितनी वेलोसिटी पे करना है, उससे कितने टेंशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, और बेल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। सिमिलरली डायमीटर ऑफ द पुलीज एंड डायमीटर ऑफ द आइडलर्स, ठीक है, स्पेस बिटवीन द टू आइडलर एंड द बेल्ट इंक्लाइनेशन। अगर आप इंक्लाइनली मटेरियल को कन्वे करें तो उसका इंक्लाइनेशन क्या होगा। So these are the parameters to which we have to play during the design of the belt conveyor. Okay. Now, again, the design of the belt conveyor is based on the available space, horizontal conveying length, and conveying length. Suppose अगर दो units है ना, one is the cleaning unit, second one is the drying unit. So how much space is available? How much is the horizontal conveyance, how much is the vertical conveyance, मीन इसमें लेफ्ट कितना है और इसमें हॉरिजॉन्टल कन्वेंस कितना है, इन चीजों को आपने देखना है। एक पॉइंट से आप दूसरी पॉइंट तक प्रोडक्ट कन्वे कर रहे हैं, फॉर विच you are going to design a belt. So first you will have to look into the available space, the horizontal conveying distance, and the left conveying distance, जो vertical difference है between the two units, between the loading and unloading point, इनके दरमियान vertical left कितना है, and that is the inclination. Now remember, if you have to transport the grains, for example wheat, maize, etc., then the standard, the inclination will be in between
17 to मीन अप टू 15 डिग्री, नॉट इन बिटवीन। इन 17 डिग्री से आप ज्यादा इंक्लाइन नहीं कर सकते। समझ आ रहा है ये पॉइंट? बेल्ट जो है पर ग्रेन्स 17 डिग्री से नहीं कर सकते, बिकॉज अगर 17 डिग्री से आप ज्यादा कर लेना और आप ग्रेन कन्वे करें तो उसका बेक मोमेंट होता है, फिर वो वापस आ जाते हैं फिर। सो जो लिमिटेड इंक्लाइनेशन है बेल्ट की पर ग्रेन, दैट इज 15, 16 और 17 डिग्री। ठीक है? And suppose if you have to transport the gravels or large size of particle, so that can be transported up to the inclination of 20 degree. Is that clear? ये कुछ स्टैंडर्ड जो है ये आप माइंड में रखें। ठीक है? अब सपोज अगर इससे ज्यादा इंक्लाइनेशन है या लेफ्ट ज्यादा है तो फिर बेल्ट कन्वेयर रिकमेंडेड नहीं होगा, फिर आप बेल्ट कन्वेयर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है? जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है? सिमिलरली बेल्ट स्पीड, दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर। So the belt speed should be selected to minimize the product spillage or removal of fine particles due to the velocity. Suppose अगर बहुत ज्यादा high velocity पे belt ऑपरेट हो रहा है तो जो स्मॉल और फाइन पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाते हैं फिर, या पार्टिकल्स और बेल्ट के दरमियान स्पिलेज जनरेट होता है, रिलेटिव मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है? सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स जो बेल्ट स्पीड है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3.5 मीटर पर सेकेंड। ओके? इन generally जो होता है, mean that is the limit, that is the highest limit, generally it will be in between 2.5 to 2.8 meter per second. Remember different चीजें होती है। अगर सपोज आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोडक्ट कन्वे होगा, लेकिन स्पीड तो लिमिटेड है, स्पीड को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। नाउ इफ यू हैव टू कन्वे दी large amount of product, then you can increase the width of the belt. Mean ये parameters जो हैं ये relative to each other है। ठीक है? So standard speed जो है that will be in between 2.5 to 2.8 meter per second, but it cannot be increased beyond the 3.5 meter per second. ठीक है? ये standard है। अच्छा, characteristics of the material which you are transporting। ठीक है? जो मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका साइज क्या है, उसके अमाउंट क्या है, उसका टाइप क्या है। तो बेस्ड ऑन दैट देन यू कैन सेलेक्ट द इंक्लिनेशन एंड स्पीड एंड वेट। ठीक है? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट हाउ मच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वेड, and the capacity of the conveyance system is depend on the capacity of the operating unit। ठीक है? जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना जिसके लिए आप प्रोडक्ट कन्वे कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो that should be approximately equal to the conveyance capacity of the conveyor। okay? now अब देखें जिस तरह आपने एक बेल्ट देखी ना उसकी क्रॉस सेक्शन क्या था, इस तरह वी कैन से दैट ट्रेपेजॉइडल शेप का था या वी शेप का होगा या फ्लैट बेल्ट अगर है। अब इसमें आप सपोज अगर ग्रेन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोडेड बेल्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोडेड बेल्ट। ठीक है? तो अब देखें इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लें और इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें, दैट इज कॉल्ड दी सरचार्ज एंगल। बिकॉज अगर जो प्रोडक्ट आप बेल्ट पे कन्वे कर रहे हैं उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इट मींस दैट कि आपने ज्यादा मटेरियल लोड किया हुआ है, उसके लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा। So surcharge angle is the important parameter during the design of the belt conveyor। Again देखें
सपोज अगर बेल्ट जो है ये इस तरह ट्रेपेजाइडल शेप का है, इसमें आप ग्रेन्स कन्वे कर रहे हैं। सो जब आप इसको लोड कर लें ना, तो इसकी लोडिंग इस तरह होती है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, सो दैट इज कॉल्ड दी सरचार्ज एंगल। तो मैक्सिममली ग्रेन के लिए सरचार्ज एंगल जो है ये 20 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। मीन ज्यादा भी आप लोड नहीं कर सकते ना, फिर प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट एंड राइट गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखें, सरचार्ज एंगल। नाउ दी सिलेक्शन ऑफ बेल्ट विड्थ जो है कि बेल्ट का विड्थ आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे। सो सिलेक्शन ऑफ बेल्ट विड्थ विल डिपेंड अपॉन दी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। बेल्ट का विड्थ कितना होगा, दैट इज डिपेंड ऑन दी required capacity and that is see width, belt का जो width है ना, that is depend on the capacity and velocity and angle of elevation। ठीक है, जो inclination है बेल्ट का। ठीक है, सो एक बेल्ट की कैपेसिटी क्या होगी, समझ आ रहा है। सपोज अगर एक बेल्ट जो है वो स्पेसिफिक वेलोसिटी पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो कितना प्रोडक्ट जो है वो कन्वे कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट इन टर्म ऑफ क्यूबिक फीट पर आवर। ठीक है, सो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेल्ट के ऊपर सपोज अगर आपने मटेरियल लोड किया हुआ है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द बेल्ट डिवाइड बाय 1.25 और मल्टीप्लाइड बाय 60। ये जस्ट कांस्टेंट है यूनिट कन्वर्जन की। वेलोसिटी जो है आपके पास फीट पर मिनट में होगी। रिमेंबर ये यूनिट्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हियर द वेलोसिटी विल बी इन फीट पर मिनट, क्रॉस सेक्शन विल बी in square feet, you will get the capacity। मतलब ये है कि सपोज अगर एक बेल्ट है ना, इसके ऊपर आपने मटेरियल लोड किया हुआ है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और कितनी स्पीड पे बेल्ट ऑपरेट हो रहा है। सो हाउ मच मटेरियल विल बी कन्वेड इन 1 आवर, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। ठीक है, सो the efficiency of the belt conveyor is depend on the idler, उसकी जो idlers होते हैं, space between them। So for higher efficiency the belt conveying system, the idler must be accurately made। इन जो idlers होते हैं ना, अब एक पॉइंट तो खत्म हो गया इसकी बेल्ट की efficiency जो है उसकी कैपेसिटी है, और दूसरी पॉइंट जो है that is the idlers। ठीक है, सो 3 काइंड्स के आइडलर्स होते हैं हमारे पास। एक जो है जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस भी की, देखें फ्लैट आइडलर्स हैं। ठीक है, इस तरह इसको ट्रक आइडलर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप के है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल है और ये दो जो है ये इंक्लाइंड है। यहाँ पे ये जो एंगल होता है इसको ट्रक एंगल कहते हैं। ठीक है, सो एक फ्लैट आइडलर्स हैं जो फ्लैट बेल्ट के साथ यूज होंगे। नाउ इफ द आइडलर इज फ्लैट तो इसका बेल्ट भी फ्लैट होगा। नाउ द एंगल ऑफ सरचार्ज ऑन द फ्लैट बेल्ट आइडलर विल बी अप टू 35 डिग्री। ठीक है, और ये जो ट्रप आइडलर है दैट इज कॉल्ड द ट्रप एंगल। ठीक है, नॉर्मली या स्टैंडर्डली ये ट्रप एंगल जो है ये 20 डिग्री पे होता है। ठीक है, सो या 35 डिग्री की भी होते हैं, 45 डिग्री की भी होते हैं। इसकी हिसाब से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएट होता है प्रोडक्ट की। ठीक है, सो इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अफेक्टेड then the capacity of the conveyance system will be affected। So the efficiency of the belt conveyor is depend on the idler type and idler spacing।
ठीक है कि इनके दरमियान स्पेस कितना है। अच्छा, तो नेक्स्ट पैरामीटर है डिजाइनिंग में जो यूज होता है, दैट इज द मीन द टेंशन डेवलप्ड एट द ड्राइव पुली। सपोज अगर ये बेल्ट है, यहाँ पे एक ड्राइव पुली होगा और एक ड्रेवन पुली होगा। नाउ द टेंशन डेवलप्ड एट द ड्राइव पुली in transmitting the required power to move the loaded belt, that is known as the effective tension। ये पुली जो है ये यहाँ पे मोटर के साथ कनेक्ट होगा ना, तो अब ये पुली अगर मूव हो रहे हैं, सो इट विल ट्राई टू मूव या टू प्रोड्यूस द वेलोसिटी इन दिस बेल्ट। सो इस मोमेंट की वजह से जो टेंशन जनरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव टेंशन। एंड रिमेंबर, ये जो इफेक्टिव टेंशन होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टेंशन ड्यू टू द एम्प्टी बेल्ट। सपोज अगर ये बेल्ट जो है ये एम्प्टी है और इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो इसकी एम्प्टी ऑपरेशन के लिए जो टेंशन रिक्वायर्ड होगा, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड दी tension to move the empty belt, okay, plus the tension required for horizontal movement। अब यहाँ पे देखिए ना, ये horizontal movement है प्रोडक्ट की और ये vertical movement है प्रोडक्ट की। so that will be the tension required for horizontal movement and the tension required for the vertical movement। So the effective tension is the sum of tension to move the empty belt plus the tension to move the loaded belt horizontally plus the tension required to lift the load। Three types के tensions required होते हैं, three types के force required होते हैं, three types के horse power required होते हैं। One is the power requirement for the empty operation plus the power requirement for the movement of the product horizontally plus the power requirement for the lifting the product। ठीक है, so जो ओवरऑल या एवरेज इफेक्टिव टेंशन जो होते हैं, that is equal to the power divided by speed। मीन दो टर्म हम यूज करें, एक पावर है एक टेंशन है। बेल्ट को एम्प्टी ऑपरेट करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है, इससे कितना टेंशन जनरेट होगा। लोड या प्रोडक्ट को हॉरिजॉन्टली कन्वे करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है, उससे बेल्ट में कितना टेंशन जनरेट होगा, प्लस प्रोडक्ट को लेफ्ट करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है, उससे कितना टेंशन जनरेट होगा। सो दैट इज द टोटल पावर रिक्वायरमेंट, और इस टोटल पावर से बेल्ट में टोटल कितना टेंशन जनरेट होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है जी? एनीवन? क्लियर है सर। अच्छा जी, सजा खान, आर यू देयर? कामरान? यस सर। अच्छा, so see, the total power required for the belt conveyor is the power required to operate the belt सर सुन रहा हूँ जी। जी सर, आवाज आ रही है, वो जरा नेट प्रॉब्लम है, स्लो होता है, हो जाती है बीच में। अच्छा, so the effective tension in the belt is equal to the power divided by speed। ठीक है, अगर स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है, पावर जो है सपोज वो किलोवाट में है, तो टेंशन जो है वो किलो न्यूटन में होगा। ठीक है, दैट इज द टेंशन। अच्छा, now we have discussed that the total power requirement is equal to the sum of the empty power requirement for belt plus the power requirement for the
horizontal moment of the product plus the power requirement for the vertical moment of the product. ठीक है, तो अगर बेल्ट आप एम्प्टी ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो एम्प्टी बेल्ट के लिए कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा? दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बेल्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ बेल्ट मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ये बेल्ट के कांस्टेंट होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट। रिमेंबर कि बेल्ट का टोटल लेंथ कितना है, दैट इज एल, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 100। अब देखिए ये एल जो है ये फीट में होगा और वेलोसिटी जो है दैट इज इन फीट पर मिनट, ठीक है। सो इससे आपके पास हॉर्स पावर आ जाएगा कि अगर बेल्ट आप एम्प्टी ऑपरेट कर रहे हैं तो इसके लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा। ये ए बी जो है ये कांस्टेंट है, या फिर देखे दिस वन, बेल्ट का वेट कितना है तो उसका ए और बी कितना होगा। दीज आर द कांस्टेंट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द बेल्ट, यू कैन टेक इट फ्रॉम द टेबल, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गया, दैट इज द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट या द पावर रिक्वायर्ड फॉर टू ड्राइव द एम्प्टी बेल्ट। अच्छा, नाउ सपोज अगर आपके पास बेल्ट लोडेड है, ठीक है, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो द हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू कन्वे द प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टली, that is equal to कैपेसिटी, ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट मूव हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 0.48 प्लस 0.00302 एल डिवाइड बाय 100, ठीक है। कैपेसिटी जो है रिमेंबर दैट विल बी इन टर्म ऑफ टन पर आवर, पर आवर में कितना प्रोडक्ट आप कन्वे कर रहे हैं, दैट इज द कैपेसिटी। तो बेल्ट का जो टोटल लेंथ है दैट इज एल, so this much will be the power required for the horizontal conveyance, ठीक है। थर्ड वन जो है द पावर रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग, सी अब ये डिस्चार्ज पॉइंट है, ये लोड पॉइंट है, तो इनके दरमियान दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल या दैट इज द लिफ्टिंग डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पे अपने प्रोडक्ट रेस करना है। सो द हॉर्स पावर रिक्वायर्ड to lift the material that is equal to ये जो लेफ्ट है ना, इसको सपोज आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें स्मॉल एल से, कि ये वर्टिकल लेफ्ट कितना है, एंड सी द वर्टिकल लेफ्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एक इंक्लाइंड एंगल होगा ना, सो आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय ये जो सपोज हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, या टेंजेंट थीटा से भी कर सकते हैं अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है। सो दैट इज द वर्टिकल लेफ्ट, रिमेंबर ये फीट में होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी टन पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 1.015 and divide by 100. So this much power will be required to lift the product, this much power will be required for the horizontal conveyance of the product, and this much power will be required for the empty moment of the belt. Now the total horsepower will be equal to sum of these three. इतना horsepower required होगा। अब इस horsepower से कितना टेंशन जनरेट होगा,
ये डिजाइनिंग हो गई बेल्ट की। कुछ समझ आ गया? ठीक। यस सर। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सी द रिलेशनशिप बिटवीन द बेल्ट वेट, द रिकमेंडेड स्पीड्स एंड द सरचार्ज एंगल। सरचार्ज एंगल, सी जब आप बेल्ट को लोड करते हैं ना, तो ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द सरचार्ज एंगल। तो सपोज अगर बेल्ट की जो वेड्थ है वो 14 इंचेस है, सरचार्ज एंगल सपोज 20 डिग्री है, और तो इसका जो एरिया होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दैट विल बी 0.096 स्क्वायर फीट। इसके लिए रिकमेंडेड स्पीड क्या होगी? 300 फीट पर मिनट फाइन प्रोडक्ट के लिए, और 400 फीट पर मिनट ग्रेन के लिए, कोर्स प्रोडक्ट के लिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जो आप डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो कांस्टेंट है जो एम्प्टी बेल्ट की ऑपरेशन के जो हॉर्स पावर में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब एक जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है उसमें। अ ट्रप्ड बेल्ट with a 20 degree surcharge is to convey 1500 bushel of wheat. Bushel जो है that is a kind of we can say that volumetric unit है, और ये 1500 बुशल जो है ये 45 टन की बराबर है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 टन में कितने बुशल्स होंगे। सो जस्ट दैट इज द कैपेसिटी, मीन दैट इज द कैपेसिटी दैट अ बेल्ट जिसकी सरचार्ज एंगल 20 डिग्री है, ट्रांसपोर्टिंग दी 45 टन पर आवर ग्रेन्स, व्हीट है ना, दैट इज ग्रेन। व्हाट वेट अ बेल्ट शुड बी यूज्ड इफ मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड इज एज्यूम्ड। सी हमारे पास ये जो स्पीड्स है ना, दीज आर द मैक्सिमम रिकमेंडेड स्पीड। नाउ क्वेश्चन ये है that if you have to horizontally convey the 45 ton per hour of wheat at a surcharge angle of 20 degree, तो बेल्ट के लिए बेल्ट का वेट क्या होना चाहिए, मीन कितने वेट का बेल्ट आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सी स्टार्ट में हमने एक इक्वेशन डिस्कस किया था ना, एक 2-3 स्लाइड पहले। कैपेसिटी जो है that is equal to the cross section area and speed of belt multiplied by 60 divided by 1.25। ठीक है, अब देखें कैपेसिटी हमारे पास क्या है, 1500 बुशल पर आवर है, यहाँ पे आप 45 भी यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब दो अननोन है हमारे पास, एरिया भी अननोन है और स्पीड भी अननोन है, बट दैट इज गिवन कि यू कैन यूज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड। सो इफ वी सेलेक्ट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड, सी व्हीट है ना, तो व्हीट ग्रेन में आएगा। सपोज आप 400 स्पीड सेलेक्ट कर लें, अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, 400 स्पीड आप सेलेक्ट कर लें, सरचार्ज एंगल कितना है, वहां पे गिवन था ना क्वेश्चन में 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री सरचार्ज एंगल पे, और अगर वेट हम एज्यूम कर लें 14 इंचेस, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 0.096 होगा। हम एजम्पशन कर रहे हैं, सी फॉर एग्जाम्पल हमने कितना कन्वे करना है, 1500 bushel, we have to convey 1500 bushel, or we have to convey 45 ton per hour. Now suppose if we select 14 inches of belt width and having 20 degree surcharge, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, और स्पीड मैक्सिमम हम सेलेक्ट कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लें,
और डिवाइड बाय 1.25 कर लें तो आप देखिए कि ये आपको कितना कैपेसिटी दे रहा है। अगर ये आपको रिक्वायर्ड कैपेसिटी दे रहा है, सो दीज आर योर डिजाइनिंग पैरामीटर। समझ आ रहे हैं? ठीक, अगर हम 14 इंच का बेल्ट सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, 14 इंच का बेल्ट हम सेलेक्ट कर लें तो 20 डिग्री सरचार्ज पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, मैक्सिमम स्पीड ये है, इट कैन गिव अस 1830 बुशल पर आवर, और हमारा रिक्वायरमेंट कितना है 1500 बुशल पर आवर है। तो 14 इंच बेल्ट जो हमने सिलेक्ट कर दिया, दैट्स ओके। अब सपोज अगर यहाँ पे आपके पास 1200 बुशल आ रहा है, 1200 बुशल आ रहे हैं, तो फिर 14 इंच जो है वो सुइटेबल नहीं होगा, आप वेट को इंक्रीज कर लें। दोबारा आप देखें, एग्जाम्पल क्लियर हो गया जी? यस सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है। Now see, in the previous example, the conveyor is 40 feet long. लेंथ जो है वो 400 फीट है एंड 15 डिग्री उसकी इंक्लाइनेशन है। टोटल पावर उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, अब ये एक कंप्लीट डिजाइन हो रहा है। सी, हमने जो है 45 टन पर आवर कन्वे करना है, उसके लिए जो वेट हमने सेलेक्ट की वो 14 इंच हो गया। ठीक है, उसका जो सरचार्ज एंगल है वो 20 डिग्री है, प्रीवियस एग्जांपल से ये इंफॉर्मेशन हो गए। लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना है 400 फीट है, इंक्लाइनेशन जो है वो 15 डिग्री है। अब इसके लिए कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा, कितना मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड होगा? अब देखिए, ये इस काइंड का एक सिस्टम होगा ना। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने व्हीट को रेस करना है इतने कैपेसिटी पे, पर हावर में 45 टन। ठीक है, अच्छा, ये इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा ना, हॉरिजॉन्टल कन्वेंस होगा, ये इसका वर्टिकल लेफ्ट होगा। यहाँ पे क्या है, ये 15 डिग्री है, ये पॉइंट याद रखें, 15 डिग्री। ठीक है, नाउ we have to find out the total horsepower, and we know that the total horsepower is equal to the sum of the power required for the empty operation plus the horsepower required for the horizontal conveyance plus the horsepower required for the vertical lifting. ठीक है, तो वो empty operation के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट था that was वो क्या था, क्वेश्चन याद है किसी को? That is the belt speed. See, the belt speed, ठीक है, multiplied by A plus B, length of the belt multiplied by divide by 100. So previous example में belt speed क्या था 400 feet per second. A और B इसको देखे टेबल से, width is 14 इंचेस, तो A 0.2 होगा, B 0.0014 होगा, तो that is A and B. लेंथ जो है ये B के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है, ये याद रखें, लेंथ इज 400 डिवाइड बाय 100, so 3.04 हॉर्स पावर विल बी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टी बेल्ट। अच्छा, नाउ द हॉर्स पावर रिक्वायर्ड फॉर द horizontal moment. So for the horizontal moment, the horsepower requirement is capacity multiplied by 0.48 plus 0.00302 L divided by 100. ये equation है। So the capacity is 45 ton per hour. These are constant. Length is 400 divided by 100. So 0.76 horsepower will be required for the horizontal
portion. Now vertical के लिए देखें, the equation is left multiplied by capacity multiplied by 1.015, ठीक है, and divide by 100. So now first you have to find out the vertical left. तो ये vertical left कितना होगा? यहाँ पे 15 डिग्री है ना, तो ये किस तरह करेंगे? अब ये 104 आया हुआ है, लेकिन आप लोग समझे कि ये किस तरह आया हुआ है. See, the length is 400, ठीक है. So simply we can say that sine 15 is equal to vertical left divided by 400. So from this you can get the vertical left, ठीक है. ये L जो है, that is the, also you can say that the distance between the loading and unloading point. So ये hypotenuse हो गया, ठीक है. ये 1.05 ये तो कांस्टेंट है, that is the, इसमें 1000 नहीं है, that is the capacity. तो ये सॉरी, यहाँ पे वर्टिकल लेफ्ट में कैपेसिटी पर 1000 है, ठीक है, टन पर आवर पर 1000, वो इक्वेशन में है. So this much horsepower will be required for vertical lifting of the grains. Now the total power requirement is 8.55 horsepower. Clear हो गया? Yes sir. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. तो बेल्ट कन्वेयर को हमने थोड़ा डिटेल से कर दिया. एंड इसकी जो कि कितना टेंशन उसमें जनरेट होगा. सो द टेंशन इज द टोटल पावर रिक्वायर्ड डिवाइड बाय बेल्ट स्पीड. तो ये पावर जो है, हॉर्स पावर है ना, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लें, और वेलोसिटी जो है 400 फीट पर मिनट है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में. तो यहाँ से आपके पास किलो न्यूटन इतना टेंशन आ जाएगा कि इस बेल्ट में इतना टेंशन जनरेट होगा. नाउ जब आप बेल्ट खरीदते हैं ना मार्केट से, तो उसमें अपना एक स्ट्रेंथ लिखा होता है कि कितना टेंशन ये बर्दाश्त कर सकता है. सो दी allowable tension must be greater than the generated tension, ठीक है. बाकी जो इसको क्विकली डिस्कस करेंगे, इतने डिटेल पे नहीं जा रहे इसके. एक चेन कन्वेयर है. See, belt conveyor can be used for a variety of material, both for packed product, grains and fine etc. चेन कन्वेयर जो है ये लिमिटेड है, ठीक है. चेन इसकी इसके जरिए मोस्टली ग्रेन सपोज आप नहीं कर सकते. अगर चेन है, इसमें आप पेक्ड प्रोडक्ट कन्वे कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है. तो देखें चेन के जरिए किस तरह प्रोडक्ट जो है वो कन्वे होता है. ठीक, अब ये एक मैकेनिकल इंडस्ट्री है ना, कि सम mechanical components are conveyed from one point to another point, but similar concept can also be used in the agricultural processing industries. Suppose if you have to convey the baked product from one point to another point, ये कार्टन्स है ना आपके पास, अगर कार्टन में है, बैग्स हैं, तो चेन के जरिए आप इसको कन्वे कर सकते हैं. अगेन यू विल हैव टू डिजाइन इट in terms of speed, width, space between the two chain, power requirement, the tensions generated due to the conveyance, ठीक है. ये उसकी डिजाइनिंग होगी. सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी पैरामीटर्स और वो फिर डिफरेंट होंगे. Here you can see the application of the chain conveyor in the agricultural processing industries. Okay, so
दी चेन कन्वेयर्स इसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसको ट्रॉली कन्वेयर कहते हैं, ठीक है, मीन द प्रोडक्ट इज अटैच्ड हियर, मीन इट ट्रॉली कन्वेयर है, ठीक है। एक जो है ये एप्रन कन्वेयर होते हैं और एक स्क्रैपर होते हैं। सिंपली वी कैन से दैट बेल्ट कन्वेयर जो है वो एक्सपेंसिव है इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बेस पे, ठीक है। एडवांटेज उसकी क्या है, वो क्वाइट है, उससे जो है नॉइस प्रोड्यूस नहीं होता, फास्ट भी है, मैकेनिकली इफिशिएंट भी है। और चेन कन्वेयर जो है ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता एज कंपेयर टू द बेल्ट। अगर सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम रिक्वायरमेंट के लिए आप चेन डिजाइन कर ले और बेल्ट डिजाइन कर ले तो बेल्ट एक्सपेंसिव होगा। अच्छा, ये अनएक्सपेंसिव होगा लेकिन ये नाइस प्रोड्यूस करते हैं, स्लो होते हैं, मैकेनिकली इफिशिएंट नहीं होता एज कंपेयर टू द बेल्ट, बिकॉज इसमें फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं, ठीक है। चेन कन्वेयर आर admirably suited to a great variety of material, mean mostly suppose अगर ये क्या है, ये मीट है ना, गोश्त, तो इसको इस ट्रॉली के जरिए आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कन्वे कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड दी ट्रॉली कन्वेयर, ओवरहेड और मोनोरेल चेन कन्वेयर, ठीक है। सो दीज आर जस्ट कंसिस्ट ऑफ इन ओवरहेड बीम, ठीक है। ये एक बीम के साथ ये ट्रॉलीज अटैच्ड होते हैं, हुक्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्ट ऑफ लार्ज साइज और फॉर दोज दैट आर हैंडल्ड इन बॉक्सेस, मीन बॉक्सेस है या बास्केट है या लार्ज साइज का प्रोडक्ट है, तो दिस टाइप ऑफ चेन कैन बी, फॉर एग्जांपल मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ठीक है। ये जो है दैट इज द स्क्रैपर, ठीक है, इसका वेट ज्यादा होता है। So again that can be normally used for the granular type of material, ठीक है। ये सैंपल भी है, चीप है, इजीली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। कैन बी ऑपरेटेड फॉर द इंक्लाइंड कन्वेंस, लेकिन पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। सी चेन कन्वेयर क्यों इनएफिशिएंट है, इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, उसके ऑपरेशन के लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। डिजाइनिंग जो है उसकी चेन कन्वेयर की डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रॉली कन्वेयर है नॉर्मली स्टैंडर्ड जो होते हैं उसकी फ्लाइट हाइट होता है, मीन ये जो फ्लाइट हाइट है ना 0.4 ऑफ द फ्लाइट लेंथ, मीन टोटल इसका लेंथ है, तो दैट इज द 0.4 टाइम ऑफ द टोटल लेंथ, ठीक है। दो फ्लाइट्स के दरमियान स्पेस approximately this space will be equal to the length of the flight, ठीक है। स्पीड जो है 75 से 125 फीट पर मिनट रख सकते हैं, अगेन दैट विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटी जो है द कन्वेयर इफ इट इज ऑपरेटिंग इन इंक्लाइंड पोजीशन वो लेस होगी एज कंपेयर टू इफ इट इज ऑपरेटिंग इन दी लेवल पोजीशन। ऑब्वियसली अगर आप इंक्लाइंड उसको ऑपरेट करें तो ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, ठीक है। एंड दीज आर द रिक्वायर्ड डिक्रीज इन द कैपेसिटी। सपोज अगर एक चेन लेवल ऑपरेट हो रहे हैं और एक चेन जो है वो 20 डिग्री इंक्लाइंड ऑपरेट हो रहा है, तो इसकी कैपेसिटी 30 to 23% इससे कम होगी। सिमिलरली अगर इंक्लाइनेशन आप 30 डिग्री कर लें तो इसकी कैपेसिटी 45% कम होगी। जनरली वी कैन से दैट द कैपेसिटी ऑफ द इंक्लाइंड कन्वेयर इज लेस देन द कैपेसिटी ऑफ द लेवल्ड कन्वेयर, ओके। थ्योरेटिकल पावर जो रिक्वायरमेंट होता है मोस्टली फ्लाइट कन्वेयर या जो चेन कन्वेयर है जो हमने डिस्कस की, ट्रॉली कन्वेयर है, दैट इज दिस वन। V is the speed of the conveyor, LC is the horizontal projected length
सपोज अगर चेन जो है इस तरह इंक्लाइंड है तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दैट इज LC. W is the weight of the flight and chain. ये मीन ये जो चेन है ना, जिस तरह बेल्ट में हम एम्प्टी पावर कंसिडर करते थे, सिमिलरली यहाँ पे चेन और ये जो फ्लाइट्स हैं या जो कंपोनेंट्स है उनका जो एम्प्टी वेट है उसकी मोमेंट के लिए सम पावर रिक्वायर्ड होगी ना. सो दैट इज द वेट ऑफ द फ्लाइट. एक फीट पोर्शन का वेट कितना है? FC is the coefficient of friction. Again chain है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है. Q is the capacity found of material conveyed in 1 minute. L is the horizontal projected length of the loaded conveyor. एक unloaded conveyor है और एक loaded है. ठीक है, loaded और unloaded दोनों की horizontal projected length में difference होता है due to the उसमें वो आ जाते हैं, स्लैग आ जाता है. Fn जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मटेरियल. मीन अगर आप मटेरियल कन्वे कर रहे चेन से तो मटेरियल और चेन के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. एंड H जो है दैट इज द वर्टिकल लेफ्ट. ठीक है, सो ये पैरामीटर के जरिए फिर आप फाइंड कर सकते हैं कि इसके लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, The calculated horsepower will be then adjusted to compensate for the mean. जो ये तो हमारे पास एक एवरेज रिक्वायरमेंट आ जाता है ना. So then for the taking care of the factor of safety, for the friction, for the loss in the pulleys, etc., then we are compensating it. So some extra amount or factor of safety can be added for these conditions. And here यहाँ पे जो एक पैरामीटर था ना, the coefficient of friction for the material. So different material की coefficient of friction ये होते हैं. ये अगर चेन के जरिए आप ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को तो मटेरियल का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा डिफरेंट प्रोडक्ट एग्रीकल्चर उसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है उनकी. ठीक है, यार इसको छोड़ दें, नहीं करते इसको. डिजाइन स्टील कन्वेयर है, अगर आप इंटरेस्टेड है खुद देख लें. कोई क्वेश्चन था तो फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये दो जो हमने डिस्कस की दैट वर मोस्टली फॉर दी ज्यादातर वो जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए होते हैं. नाउ सपोज इफ यू हैव टू convey the product exactly in vertical direction, so then for that purposes the bucket elevators are used. ठीक है, इसलिए bucket elevator use होता है. See, in elevating up suppose grain, ठीक है, so the bucket elevation that is used here you can see now कि ये प्रोडक्ट किस तरह वर्टिकली मूव होता है. ठीक है, जस्ट लोड हो जाएगी फिर. ये नहीं है, ये वर्टिकल नहीं है. यहाँ पे देखें दिस वन विजिबल है, क्लियर? Yes, sir. Visible है, sir. See, तो that is the bucket elevators. एग्जैक्टली वर्टिकली प्रोडक्ट को जो है वो एलिवेट कर रहा है. सी, एक एक बकेट में सम प्रोडक्ट है ना, जब वो यहाँ पे जाते तो वहाँ पे ये एम्प्टी हो जाते हैं और खाली बेल्ट जो है वो वापस आते हैं फिर. ठीक है, इसकी फिर पैकिंग होती है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वन. एंड दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कन्वेयर. हियर यू कैन सी द पैक प्रोडक्ट इज conveyed into for further we can say that packing purposes. ठीक है, so in elevating of grains जो डिस्चार्ज होता है बकेट से, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये लोड हो जाते हैं लोअर पॉइंट पे बिकॉज वी हैव टू एलिवेट द प्रोडक्ट, सो इट विल बी लोडेड हियर. और यहाँ पे जब ये अनलोड होंगे, सो अनलोडिंग विल बी a combination of centrifugal
एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है ये फिर डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द बकेट जो है दैट इज प्रोजेक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द रेस्ट बाय द ग्रेविटी, इसकी जो एम्प्टी होती है, एम्प्टीनेस होते हैं, ठीक है। When a product mass turns around a pulley, it is influenced by two forces. ये pulleys हैं, दो forces होते हैं इसकी empty करने के लिए. That is the bucket elevator. ठीक है. Again, the centrifugal force will be depend on the speed of operation. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरह मैकेनिज्म अरेंज करते हैं कि ये प्रॉपरली खाली हो जाए. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं that is the loading point. The product is elevated at this point, और या फिर आप इसको discharge करें. So these are called the bucket elevators. Again, the capacity will be depend on the space between the two buckets. Here you can see space medium है, यहाँ पे space ज़्यादा है, यहाँ पे closed है, ठीक है. So three common types होते हैं. Centrifugal discharge type, mostly used for the handling for small grains. Perfect discharge type है, continuous buckets हैं, ठीक है. Continuously product move होते हैं. Again, that will be depend on the processing unit कि किस तरह वो कर रहा है. अगर उसको continuous product चाहिए तो आपके bucket जो है वो भी continuous होनी चाहिए. अगर processing unit जो है वो intermittent है तो फिर इस तरह वक्फे के साथ जो है प्रोडक्ट को कन्वे करना होगा, ठीक है. इसमें जो एक पॉइंट है दैट इज दी पावर रिक्वायरमेंट के सही है सर और ये कुछ टीचर्स. अच्छा, सो जो पावर रिक्वायरमेंट है इसमें हॉर्स पावर इज इक्वल टू कैपेसिटी, ठीक है, हाइट ऑफ एलिवेटर एंड एफ जो है दैट इज सम फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड द एलिवेटर फैक्टर है, ठीक है. 1.5 होते हैं एलिवेटर अगर अप साइड लोडेड होते हैं ना. सी अगर अगर यहाँ पे लोड होते हैं, अप साइड से लोड होता है तो फिर एफ जो है 1.5 होता है, ठीक है. और अक्सर खुद ब खुद जिस तरह ये बकेट इस तरह पास होते हैं ना तो यहाँ पे ये लोड हो जाते हैं, तो इसके लिए फिर ये 1.2 है ये स्मॉल एफ जो है. और अब ये इसके लिए ये 1.5 होगा बिकॉज द बकेट्स आर लोडेड फ्रॉम अप साइड, ठीक है. ये अप साइड से लोडेड हो रहे हैं ना तो इसके लिए फिर 1.5 होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 33,000, ठीक है. ये उसका हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट होता है, जस्ट एक फैक्टर है. सिमिलरली ये देखिए ये भी एक कन्वेयर है, जस्ट लेके इसको स्क्रू कन्वेयर है, इसके जरिए भी आप प्रोडक्ट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वे कर सकते हैं. तो मोस्टली दे आर यूज्ड टू कन्वे द फाइनली डिवाइडेड प्रोडक्ट. अब देखिए ना फाइन प्रोडक्ट है ना, देखिए कि किस तरह स्क्रू के जरिए कन्वे हो रहे हैं, ठीक है. अगेन दैट इज जस्ट कंसिस्ट ऑफ एक ट्यूबुलर शेप होता है, यू शेप का. देखिए जस्ट ये क्लोज्ड है, ठीक है. अब देखिए दिस वन it consists of we can say that a tubular or U-shaped trough, ठीक है. और इसमें ये स्पाइरल शाफ्ट होता है जिसकी रोटेशन और मोमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वे हो रहा है. अब देखिए प्रोडक्ट इज मूविंग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दैट we can say that screw. तो ये वर्टिकली भी आप प्रोडक्ट से मूव कर सकते हैं, ठीक है. इट इज रिकमेंडेड फॉर द फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स प्रोडक्ट, या अक्सर स्टिकी प्रोडक्ट्स हैं, या अगर हाईली वेस्कस प्रोडक्ट हैं, या अगर हॉट सब्सटेंस हैं जो केमिकली अक्सर एक्टिव होते हैं, जो आप प्रॉपर्ली सपोज अगर हैंडलिंग मसला होते हैं तो सी द प्रोडक्ट इज
move from one point to another point. That is called the screw conveyor. ठीक है? अच्छा, ये भी है इसकी डिफरेंट सेटअप है, कंस्ट्रक्शन है, नॉट गोइंग इन डिटेल। बाकी जो होते हैं ग्रेविटी कन्वेयर्स होते हैं, हम देखें ना इस तरह, इसमें जस्ट ये रोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन रोलर्स की वजह से ये जो यहाँ पे अगर आप रख देना तो ये नीचे आ जाता है, मीन इंक्लाइंड है ना, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो दीज आर दी ग्रेविटी कन्वेयर, इसके लिए कोई मैकेनिकल पावर या इस तरह कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। Here you can see no power is required, खुद ब खुद वो मूव हो रहा है ना, जस्ट इंक्लाइनेशन, और ये सर्कुलर ये रूलर्स टाइप के लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं? यस सर नजर आ रहा है। ये भी है ना, ट्रॉली होते हैं नॉर्मली, हमारे हैंड ट्रॉली जो होते हैं, ये जो ट्रक्स हैं, दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ द conveying material handling, we can say that mechanisms, these are also called the conveyors, ट्रॉली के जरिए। just we can summarize to move the agricultural product horizontally or vertically. So any mechanisms or any conveyors, this process is called the material handling. Okay. If you have any question, then you can ask.